Today what we are going to study is physical injury or physical injury, you can say that. So anyone tell me what is the difference between these two pictures? So is there any difference between these two pictures, yes or no? Okay, so we all agree that yes, there is some difference. So what is the difference? आप लोगों का एक्सरे रीडिंग क्लास हुआ है, हाँ या ना? हुआ है एक्सरे रीडिंग क्लास? तो तब तो बहुत इजी है, कोई भी बता सकता है. What is the difference between these two X-ray? Okay, so that is the X-ray of a male pelvis and that is the X-ray of a female pelvis. That is female, that is male. So you are saying this is female and this is male. Good. This is the thing. This is the X-ray of a child. So how will you describe an X-ray? How will you describe an X-ray? Okay, by seeing X-ray, can you tell whether it is a male or a female? Okay, so where it is written? So how can you just guessing? ये female ही होगा, ऐसा कुछ है क्या? Or either something you can teach me कि how to see the X-ray and say कि this is a male or female. Okay, good. Sit down. Anyone else who can describe this X-ray? Anyone? इधर से देख पा रहे हो? नहीं तो इधर आ जाइए आप सब. You can come this side. ठीक है, समझ गया. It's okay. So there is a difference between these X-ray. So is there any fracture here? As you can see clearly, there is some gap here, but and here, but here and here, but there is no gap here. Okay. So as he described, so if we want to describe an X-ray, so what we have to do? We have to say, so this is an X-ray or a skygram of a skeletally immature patient, and this is an X-ray or skygram of a skeletally mature patient, showing a part of the pelvis, both the hip joint and proximal part of the femur. And in this X-ray, we can say that this is a skygram showing of of a child whose physis is not fused, showing the part of the pelvis, proximal femur and the distal part of the femur. So this gap is known as the physis. So can anyone tell what does physis do? What is the work of a physis? Grow the bone. Good. So now, so this is the introduction part. So disruption of the cartilaginous part. Sit down. So disruption of the cartilaginous part is known as the physical injury or physical injury. It may involve the epiphyseal or metaphyseal bone or fairly common in children. Okay. तो होता क्या है, जो फाइसिस रहता है, फाइसिस हर बोन के दो तरफ रहता है, जो लॉन्ग बोन्स रहती है, एक प्रॉक्सिमल पार्ट और एक डिस्टल पार्ट. अगर किसी भी साइड का फाइसिस का इंजरी होता है तो उसको फाइजियल इंजरी कहते हैं अपने. ओके. तो बच्चों के अंदर होता है क्योंकि बड़ों में तो फाइसिस फ्यूज हो जाता है. तो कोई बता सकता है फाइसिस कब फ्यूज होता है? ओके. तो फाइसिस अलग अलग बोन के अलग अलग टाइमिंग पे फ्यूज होते हैं. तो फाइसिस, कुछ बोन्स का फाइसिस लेट अपीयर होता है, कुछ का अर्ली अपीयर होता है. उसी तरीके से कुछ बोन का फाइसिस अर्ली फ्यूज होता है, कुछ का लेट फ्यूज होता है. तो जैसे आपने एल्बो का कभी एक्सरे देखा हो तो उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म भी दिया जाता है. कि कोई जानता है क्या है उसका शॉर्ट फॉर्म? ओके, कोई बात नहीं. तो अपने आज टॉपिक इसी पे रहते हैं, किसी और दिन डिस्कस करेंगे वो चीज. तो अगर इसकी बात करें तो फाइजियल इंजरी क्या होता है? इन केस इफ देयर इज अ डिसरप्शन ऑफ द कार्टिलेजिनस फाइसिस, उस कंडीशन को हम फाइजियल इंजरी कहते हैं. जैसे कि हमने इस बोन में देखा, यू कैन सी यहाँ पे प्रोक्सिमल में भी एक फाइसिस है, डिस्टल में भी एक फाइसिस है और बीच में यहाँ पे भी है. कोई भी फाइसिस अगर इंजरी होती है तो दैट इज द फाइजियल इंजरी. तो अगर अपने एपिडोमिनल बोरिंग पार्ट में जाएं तो दीज आर द सम ऑफ द फ्यू बोरिंग पार्ट. मैं भी ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता इस पे. तो एपिडोमिनल पार्ट में प्रिवलेंस 10 to 30% जो भी बच्चों के अंदर फ्रैक्चर होते हैं वो फाइजियल इंजरी के अराउंड होते हैं. और बाइमोडियल पीक होता है, कुछ इन्फेंसी में ज्यादा रहता है और फिर 10 to 12 ईयर में ज्यादा होता है. कोई बता सकता है इस बाइमोडियल पीक का क्या कारण हो सकता है? एनीवन?
बाइमोडियल पीक का मतलब समझ रहे हैं आप? यस, तो वो दो टाइम पे इस जगह पे फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है? एनीवन? अरे ट्राई दो ना, ज्यादा क्या होगा, गलत ही तो होगा, तो उससे क्या होता है? गिव इट ए ट्राई। एनीवन? ओके, तो क्या होता है जब दो टाइप के एज में ग्रोन बोन की जो ग्रोथ होता है बहुत फास्ट होती है। कौन कौन सी एज में? एक तो इन्फेंसी और एक नियर प्यूबर्टी। ओके, तो इन दोनों जगह पे हार्मोनल चेंजेस के कारण ग्रोथ फास्ट होती है। जब किसी चीज की ग्रोथ फास्ट होती है तो उस जगह पे कंसोलिडेशन का टाइम कम मिलता है, राइट? जब आप कोई चीज बहुत तेजी से भाग रहे हो तो आपको अपना पीछे का चीज को कंसोलिडेट करने का टाइम कम मिलेगा। जैसे आज अगर आप कर रहे हो एक दिन में 10 चैप्टर पढ़ने लग जाओ तो आप 10 चैप्टर को रिवाइज नहीं कर पाओगे और पहले के चैप्टर बहुत सारे भूल जाओगे। उसी तरीके से बोन जब रैपिडली ग्रो करती है तो वो एरिया थोड़ा सा वीक हो जाता है। इसीलिए वो दोनों टाइम जो रहते हैं, जिस वक्त पे पीक ग्रोथ रहता है, ज्यादा ग्रोथ रहता है, एट दैट टाइम देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, हाई चांसेस कि उस वक्त पे फाइजियल इंजरी होता है। Am I clear? तो मेल में ज्यादा होता है, तो ऐसा कोई बता सकता है मेल में ज्यादा क्यों होता है? एनीवन? अरे कुछ तो बोलो यार, या कहीं से आवाज आई यार, कोई कौन था? कोई तो ऐसा चांस होगा कि मेल में ही ज्यादा होता है, कुछ तो ऐसा होगा, या बस पढ़ा ऐसा हर डिजीज मेल में ज्यादा होती है, ऐसा कुछ है क्या? तुम सही कह रहे हो इसीलिए बोल रहा हूं। ओके, outdoor activities, they are involved in more outdoor activities and they are more mischievous, that's why. Good. Okay, तो upper extremity are more involved as compared to the lower extremity. ये थोड़ा बोरिंग पार्ट है तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं देता। अब आते हैं एनाटॉमी ऑफ फाइसिस। ये थोड़ा सा जरूरी है आपके लिए। क्यों? एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द फाइसिस, व्हाट आर द जोन्स ऑफ द फाइसिस, एक्सप्लेन, और किस जोन में क्या एक्टिविटी होती है और किस में क्या होता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, इसलिए इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अगर जोन की बात करें, फाइसिस इज द स्लैब ऑफ हाइलिन कार्टिलेज लोकेट बिटवीन टू एंड ऑफ द बोन। क्यों? जो फाइसिस है, फाइसिस के ऊपर एपी और फाइसिस के नीचे, जस्ट नीचे मेटा, और जस्ट जो बीच का पोर्शन है बोन का, दैट इज नोन एज द डायफाइसिस। तो फाइसिस के ऊपर एपी, तो एपीफाइसिस, फाइसिस, देन मेटाफाइसिस एंड देन डायफाइसिस। क्लियर? तो होता क्या है, तो आपका जो फाइसिस है, दिस इज अ टाइप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ओके, जो बोन के ग्रोइंग एंड रहता है, जो आपका एपीफाइसिस और मेटाफाइसिस के बीच में रहता है। देन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, एज यू ऑल नो, डिवाइडेड इनटू 4 जोन। दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कभी भी कि व्हाट आर द जोन्स ऑफ द फाइसिस। सो यू हैव टू रिमेंबर इज दैट कि फाइसिस के 4 जोन होते हैं। फर्स्ट इज द जर्मिनल जोन, जिसको रेस्टिंग भी कहते हैं। देन कम्स द प्रोलिफरेटिव पार्ट, देन द हाइपरट्रोफिक जोन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर जोन ऑफ कैल्सिफिकेशन। तो ये कैसे रहता है? तो ये पिक्चर को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो इसमें से सबसे पहले जो फाइसिस के जस्ट नीचे का पार्ट होता है, नॉट फ्रॉम द मेटाफाइसिस एरिया, फ्रॉम द फाइसिस, फाइसिस एपीफाइसिस, एपीफाइसिस के जस्ट नीचे का जो पार्ट है, वहां पे आपका जर्मिनल एरिया रहता है। ओके, जर्मिनल एरिया रहता है, जिसको रेस्टिंग जोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पे आपके जो मेनली जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं, जो आपके न्यूबॉर्न फॉर्मेशन करते हैं, वहां पे अपना रेस्टिंग फेस में रहते हैं, जिसको अपने कह सकते हैं कि एक टाइप से न्यू सेल्स, जो किसी भी चीज में अपने आप को स्टेम सेल्स टाइप से किसी चीज में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसको ओस्टियोक्लास्ट बनना है, ओस्टियोब्लास्ट बनना है, या और कोई सेल बनना है, तो वो उस एरिया में रहते हैं। तो क्योंकि वो अभी रेस्टिंग फेस में है, जब उनको स्टिमुलस मिलेगा एट दैट टाइम वो कन्वर्ट होंगे किसी और सेल के अंदर, तो उसको अपने क्या कहते हैं, रेस्टिंग जोन या फिर आपका प्रोलिफरेशन जोन कहते हैं। देन कम्स योर हाइपरट्रोफिक जोन। हाइपरट्रोफिक जोन का मतलब, हाइपरट्रोफी सबको पता है क्या होता है, तो हाइपरट्रोफिक जोन में हाइपरट्रोफी रहता है। देन कम्स योर कैल्सिफिकेशन जोन। कैल्सिफिकेशन में मींस क्या होता है, एंड देन कम्स द ओसिफिकेशन जोन। तो कैल्सिफिकेशन एंड ओसिफिकेशन दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ बता सकते हैं? तो कैल्सिफिकेशन में क्या होता है, सेल के अंदर जो कुछ ऑर्गन्स रहते हैं उनके अंदर कैल्शियम जमा होना स्टार्ट हो जाता है, बट सेल इज नॉट टोटली कन्वर्टेड इनटू द दिस योर कैल्शियम बॉडी। ओके, तो वो बाद में होता है, तो दैट इज नोन एज योर जोन ऑफ योर ओसिफिकेशन। ओके,
Then etiopathogenesis is the most commonly just RTI means road traffic accident, फॉल, स्पोर्ट्स इंजरी, प्लेग और इंजरीज। जैसा कि आपने अभी थोड़े पहले डिस्कस किया कि मेल्स के अंदर क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि मेल्स ये सब काम ज्यादा करते हैं तो उनके अंदर चांसेस ऑफ इंजरी ज्यादा रहता है। देन कम्स द बायोमैकेनिक्स पार्ट। बायोमैकेनिक्स मींस कंप्रेशन, शियर एंड टेंशन। दीस आर द थ्री टाइप ऑफ द फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन द बोन causing the fracture. Okay, then classification, this is a very important part. ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, बट द इम्पोर्टेंट थिंग, देयर आर फ्यू इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन। वन इज योर पीटरसन, ऑग्डन एंड सेल्टर हैरिस। तो इन सब में भी सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो डेट इज योर सोल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन, जो वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, और यही अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो डेट विल सर्व द पर्पस। ओके, तो अब आपने आते हैं सोल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन क्या है। तो दिस इज योर सोल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन। इसके क्लासिफिकेशन के अराउंड अगर आप देखें तो इसके अंदर 5 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन फ्रैक्चर आते हैं। फर्स्ट टाइप 1, जिसमें आपका फाइसिस का जो फ्रैक्चर रहता है दैट इज थ्रू द फाइसिस। हर कोई फ्रैक्चर थ्रू द फाइसिस है, लेकिन इसके अंदर फाइसिस टाइप 1 के अंदर क्या रहता है, जो आपका फाइसिस रहता है वो अपनी जगह से एक शियरिंग फोर्स के कारण अलग हो जाता है। सेकेंड इज जो आपका फ्रैक्चर लाइन है वो आपका मेटाफाइसिस एरिया के अंदर जाता है। थर्ड के अंदर आपका जो फाइसिस जो फ्रैक्चर जोन है वो एपिफाइसिस एरिया के अंदर जाता है। टाइप 4 की अगर अपने बात करें तो टाइप 4 जो फ्रैक्चर है उसके अंदर एपिफाइजियल एंड मेटाफिजियल दोनों के एरिया के थ्रू लाइन जाती है, फ्रैक्चर लाइन। ओके, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर टाइप 5। ये एक टाइप का कंप्रेशन फ्रैक्चर है। इसमें क्या होता है कि जब कोई बोन किसी इंजरी के द्वारा या किसी इंजरी के कारण कोई कंप्रेशन पड़ता है बोन के ऊपर, कि एक उसका ऊपर एपिफाइसिस पार्ट है, नीचे बीच में फाइसिस है, देन डायफाइसिस। अगर कोई जंप करता है, जंप करने के कारण या इस टाइप की कोई हाइट से गिरने के कारण, इंजरी के कारण ऊपर से क्रश होता है, तो दैट कॉजेज योर टाइप 5 फ्रैक्चर। दैट इज द रेयरेस्ट फ्रैक्चर जो लेकिन रहता है। ओके, सो दिस इज द अनदर पिक्चर ऑफ द सेम फ्रैक्चर, जिसमें आपने बताया कि कौन सा फ्रैक्चर कितना ज्यादा प्रिवलेंस ज्यादा रहता है। जैसे नॉर्मल बोन आप देख पा रहे हैं, देन कम्स द टाइप 1 फ्रैक्चर। इस पिक्चर के अंदर यू कैन सी कि फाइसिस कैसे ब्रेक हो रहा है, एंड इन द थर्ड पिक्चर यू कैन सी हाउ द फाइसिस इज ब्रेकिंग। एक चीज टाइप 2 के अंदर आपको और बताना चाहेंगे, तो ये जो फ्रैक्चर है, दिस स्मॉल लाइन, दिस इज नोन एज द होल्स्टेन लुइस फ्रैगमेंट। ओके, अगर बता पाते हो, अगर ऑनर्स के लिए जाओगे तो कोई पूछ सकता है व्हाट इज दिस, अदरवाइज भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है। देन कम्स योर then comes your third type. In third type you can see the fracture line is coming in this area, epiphyseal area. Then type 4, जिसमें आपका फ्रैक्चर लाइन टोटली ऊपर से नीचे रन कर रहा है, both in the epiphyseal and the metaphyseal region. And the last but not the least is your compression type of fracture. Again इसी को और अच्छे से समझाने के लिए एक और पिक्चर मैंने दिया है ताकि आपको और अच्छे से समझ पाए। ये 3-4 पिक्चर एक ही क्लासिफिकेशन का, एक ही चीज को मैं बार बार दिखाने का कारण यही है कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा और यही क्वेश्चन आता है, तो ये पिक्चर आप सबके माइंड में एक इम्प्रिंट हो जाए, मैं ये चाह रहा हूं। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे नॉर्मल फाइसिस कैसे है, देन टाइप 1, देन टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 एंड देन टाइप 5, दैट इज द क्रशिंग। दिस इज वन अनदर पिक्चर जस्ट टू जैसे मैंने कहा कि ये पिक्चर आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए, यही एग्जाम में आने वाला है। आई रिपीट, यही तुमसे क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा, चाहे थ्योरी एग्जाम है चाहे प्रैक्टिकल है। ओके, सो नाउ कम्स द इंटरेस्टेड पार्ट, क्योंकि सब डॉक्टर बनने वाले हो, फाइनल ईयर में हो, तो यही सब जानना चाहते हो। तो व्हाट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट? इंटरेस्टिंग पार्ट इज हिस्ट्री। कभी भी बच्चा आता है आपके पास तो क्या हिस्ट्री लेके आएगा? तो हिस्ट्री में बच्चा बोलेगा कि भैया गिर गया था, या किसी ने चोट लगी, या किसी से मारपीट हुआ, समथिंग लाइक दैट ही विल गिव द हिस्ट्री। देन कम्स द योर सिम्टम पार्ट। सिम्टम्स पार्ट में क्या क्या होगा? बेसिकली पेन रहेगा, स्वेलिंग रहेगी, अनेबल टू बियर वेट, अगर लोअर लिम्ब है तो अनेबल टू डू रूटीन एक्टिविटीज, एंड देयर माइट बी डिफॉर्मिटीज। अगर कोई हाई इंजरी है थोड़ा सा या कुछ है तो डिफॉर्मिटी अपने को बाहर से विजिबल दिखेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साइंस के अंदर है, कलर चेंजेस हो सकता है वहां पे, क्योंकि कोई भी चोट लगती है तो वहां पे इरिथ्रोमेटस चेंजेस रहते ही हैं।
ब्लड सप्लाई का वैसा रहता है, डिसरप्शन रहता है, तो वहां पे आपको इरिथमिया मिल सकता है, देन डिफॉर्मिटी मिल सकती है, स्वेलिंग, टेंडरनेस, लोकल टेम्परेचर विल बी रेज एंड पेनफुल रेंज ऑफ मोशन। ओके, तो अच्छा कोई बताएगा साइन एंड सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है? गुड, सिम्टम इज एक्चुअली व्हाट द पेशेंट टेल्स टू यू। अगर पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को दर्द हो रहा है तो वो दर्द ही बोलेगा, वो ये नहीं बोलेगा मेरे को टेंडरनेस हो रहा है। टेंडरनेस जो हम देखते हैं, तो सिम्टम्स आर द सिंपल लैंग्वेज दैट पेशेंट इन विच द पेशेंट गिव्स द हिस्ट्री, एंड साइंस आर द थिंग्स दैट वी सी कि हाँ भी हमने क्या देखा, उसमें क्या है क्या नहीं है। ओके, तो देन कम्स द मैनेजमेंट पार्ट। तो मैनेजमेंट पार्ट में क्या क्या आएगा? मैनेजमेंट पार्ट क्या क्या होता है, कुछ बता सकते हैं? मैनेजमेंट पार्ट में क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, उसके क्या क्या ये रहता है, क्या क्या उसके ये हैं आपके? इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। गुड, तो अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? एक्सरे कर सकते हैं, दैट इज द बेसिक इन्वेस्टिगेशन ऑर्थोपेडिक्स का। देन यू कैन गो फॉर द अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन एंड एमआरआई। अच्छा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कभी बच्चा देखा हो तो हो सकता है कि जब 6 महीने बाद एग्जाम है, तुम्हारे एग्जाम करके इंटर्नशिप करने के लिए कभी ऑर्थोपेडिक्स ओपीडी में आ रहे हो, एट दैट टाइम देखते हो कि हाँ भी एक एक्सरे देखा और एक बच्चे का है, एंड बच्चा वैसे भी कभी एग्जामिन नहीं करने देता है, तो कैसे पता चलेगा कि बच्चे का वो फ्रैक्चर है या एपिफाइजिस या फाइजिस ही है जिसको आप गलती से समझ रहे हो कि ये फ्रैक्चर है? तो हाउ विल यू क्लियर दैट थिंग? कोई जवाब देना चाहेगा? एनीवन हैज आंसर? आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन। सपोज यू आर इन ओपीडी, एक बच्चा आता है आपके पास, आप एक्सरे प्रिस्क्राइब करते हैं, बच्चा एक्सरे लेके आया आपके पास, वो एक्सरे देखने के बाद आपको लगा कि यार ये फ्रैक्चर है, बट योर सीनियर टोल्ड यू नहीं नहीं ये फ्रैक्चर नहीं है, तो कोई एक तो सही है, कोई एक गलत है, आइदर यू आर रॉन्ग आइदर योर सीनियर इज रॉन्ग। तो इस चीज को कैसे कंफर्म करोगे कि कौन रॉन्ग है कौन सही है? सॉरी, एमआरआई। अच्छा यार, ओपीडी में आएगा तो 10,000 का एमआरआई लिख दो। मूवमेंट ऑफ द जॉइंट। गुड, बच्चा मूवमेंट करने देगा? 2 साल का बच्चा तुम्हें मूवमेंट करने देगा? विल द मदर अलाउ? एनीवन? ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, ये आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, क्योंकि सोन यू विल बी डॉक्टर्स, तो काम आएगा इसलिए पूछ रहा हूं। कोई और कोई आइडिया? एनी रफ आइडिया? वेरी गुड। तो कभी भी कंफ्यूजन होता है कभी इस चीज को लेके कि बच्चे का एक्सरे इज आइदर इट इज अ फाइसिस और इट इज अ इंजरी और समथिंग एल्स, तो क्या करना है? हमेशा अपोजिट साइड का एक्सरे रिपीट करवा लेना है। उससे क्या होगा? दोनों साइड का एक्सरे आप कंपेयर करिए, कंपेयर करके आप बता सकते हैं वेदर देयर इज अ फ्रैक्चर और नॉट। ओके, तो दैट विल बी द थिंग दैट विल हेल्प यू टू क्लियर कि सीनियर गलत है या आप गलत हो। ओके ओके, तो नेक्स्ट इज टाइप 1 फ्रैक्चर, एज आई टोल्ड यू। तो दिस इज व्हाट अ टाइप 1 फ्रैक्चर लुक लाइक। कैन यू सी? इधर से देख पा रहे हो? तो सबको दिख रहा है? ओके, तो टाइप 1 फ्रैक्चर को समझ पा रहे हो? जैसे मैंने कहा था ना, एक शेयरिंग फोर्स रहेगा। तो एज यू कैन सी, नॉर्मल रेडियस का एक्सरे तो देखा ही है सबने बच्चे का, तो ये फाइसिस रहता है वहां पे। So this is the physis and this is just toppled, like किसी का कैप उतार दिया हो किसी ने, तो this is like type 1 fracture of Salter Harris. Okay, so this is the type 2 fracture. आप देख पा रहे हैं, the fracture line is extending in the metaphyseal area here. Okay, so this fracture is your type 2 fracture. Got it? Then this is a type 3 fracture. As you can see, this fracture line is going here downward in the epiphyseal area. This is the physis, this is the epiphyseal area. इसी तरीके से एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया है फॉर यू। ये देखिए, ये फाइसिस हुआ, ये जो फ्रैक्चर लाइन है इधर जा रही है विद इन द एपिफाइसिस, तो दिस इज अ टाइप 4 फ्रैक्चर। ओके, सो टाइप 3 फ्रैक्चर, सॉरी। सो दिस इज अ टाइप 4 फ्रैक्चर। यू कैन सी कि आपका जो लाइन है ये पूरा इधर से इधर आ रहा है। गॉट इट?
then this is a type 5 fracture. Type 5 fracture are the most hard one to diagnose, or most of the time they goes undiagnosed. If you are not expert, they goes undiagnosed. क्यों? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले पूछा कि how will you confirm whether your senior is right or you are right, तो उस कंडीशन में आप दूसरे आर्म का एक्सरे करवाएंगे, दूसरे अपोजिट साइड का. बट इन द टाइप 5 फ्रैक्चर, एज दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कंप्रेशन फ्रैक्चर, तो यू विल नॉट फाइंड एनी डिफरेंस, but you will just find yes there is tenderness, there is some pain, there is a painful range of motion. Clinically you will say yes sir, there is something fishy, I can make it out, but what is wrong I cannot tell. So that is a type 5 fracture. In type 5 fracture, most of the time you will not able to diagnose the exact fracture, but clinically you will say yes there is a fracture, and to confirm that thing then we need an MRI. MRI क्यों? MRI जब आप करेंगे तो एट दैट टाइम यू विल सी, MRI के अंदर आपको वहां पे हेमाटोमा मिलेगा, प्लस आपको MRI के अंदर वहां पे क्रशिंग इंजरी के कारण जो जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब आपको MRI में देखने को मिलेंगे. स्पेशली देयर विल बी द बोन एडिमा दैट विल नॉट बी प्रेजेंट ऑन द नॉर्मल साइड. ओके, सो दिस इज अ टाइप 5 इंजरी. सो ट्रीटमेंट पार्ट. ओके, ट्रीटमेंट पार्ट में एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई फाइजियल इंजरी आता है, इट नीड्स एब्सोल्यूट रिडक्शन. Okay, whenever there is a physical injury, it needs absolute reduction. Either आप उसको close reduction करिए, either open reduction करिए, either fixation with K-wire or fixation with some screw plate or whatever, but it needs an absolute fixation. Why? Because अगर आपने उसको ठीक से फिक्स नहीं किया, ग्रोथ प्लेट अपनी जगह से थोड़ा सा भी इधर उधर की तरफ रहता है, तो it will cause angular deformities because one side of the bone will not grow, or either it will grow in the wrong manner, so that will cause the angular deformity. So the treatment part is the close reduction, open reduction, or your fixation with hardware if needed. Then the complication part of this fracture. The complication part is simple. First is your growth arrest. तो हो सकता है you will be thinking sir, why will this fracture will not go into non-union, right? तो कोई क्या बता सकता है कि बच्चों के अंदर नॉन यूनियन क्यों नहीं होता है? बच्चों के अंदर नॉन यूनियन होने के कारण 2-3 कारण है. फर्स्ट तो उनकी पेरियोस्टियम जो रहती है, पेरियोस्टियम इज व्हाट द लेयर ओवर द बोन, जिसके अंदर आपके जर्मिनल सेल सब कुछ रहते हैं, वो बहुत थिक रहती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा रीजनरेशन पोटेंशियल होता है, तो दैट विल नॉट अलाउ दिस योर नॉन यूनियन. ओके, और स्पेशली फाइसिस के अराउंड में कैंसरस बोन रहता है, वो बड़ों के अंदर भी नॉन यूनियन नहीं होता है. क्यों? वो अपने आप यूनाइट करता है. कैंसरलेस एरिया में नॉन यूनियन नहीं मिलता है. ओके, बहुत रेयर चीज है अगर आपको कैंसरलेस एरिया में नॉन यूनियन मिल रहा है तो, और बच्चों में तो बिल्कुल नहीं मिलता है, और बच्चों में डायफाइसिस के अराउंड भी कभी नॉन यूनियन नहीं मिलता है, एक्सेप्ट अगर वहां पे कोई इंफेक्शन है और आइदर देयर इज सम पैथोलॉजी अंडर इट, otherwise you will not find non-union in the case of children. Okay, so what are the complication? Growth arrest, overgrowth. Now we'll say sir fracture हुआ, overgrowth क्यों हो जाएगा? तो कोई बता सकता है overgrowth क्यों होगा? तो जब भी कोई फ्रैक्चर होता है उसको हील करने के लिए ब्लड सप्लाई बढ़ती है, और whenever there is a increase in the blood supply, तो वहां पे न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं, वहां पे सेल रीजनरेशन बढ़ता है, तो that can cause your this overgrowth. Okay, तो then comes the angular deformity. जैसे मैंने बताया अगर हल्का सा भी इधर उधर होता है तो that will cause your angular deformity, and especially in the type 5 fracture, whether you cannot say कि whether there is a presence of fracture or not. Ultimately on long term follow up basis you will see कि there will be some angular deformity because one side of the fracture, one side of the physis is fused because of that injury, other side grows, so the side which is not growing will shows the angular deformity. Okay, so then comes the secondary osteoarthritis. If as we have seen, the fracture are generally around the joint area, so in case if there is no good fixation or there is no good reduction, that will cause your secondary osteoarthritis, the destruction of the joint. Okay, so prognosis depend on the age of the patient. As I already told कि बच्चों के अंदर रीजनरेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा रहता है, जितना बच्चा छोटा होता है उसका रीजनरेशन एंड रीमॉडलिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा रहता है. वो बच्चों के अंदर हमने देखा है कि लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है,
लेकिन देन आफ्टर अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। तो यू कैन नॉट टेल इन द केस ऑफ द चाइल्ड और नियोनेट की उसकी इंजरी या उसके इन्फेक्शन के बाद भी पूरा बोन रीग्रोथ कितना हो पाएगा या कितना नहीं हो पाएगा। So this is age of the patient, type of injury, and third is the extent of chondro-osseous disruption. कितना वहां पे डिसरप्शन हुआ, कितना वहां पे चोट लगा, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा उसका प्रोग्नोसिस क्या रहता है बाद में।